Namaskaram. So this is another live. This is regarding basically I clarified a lot of things about you, like who is spiritual, who is not spiritual, which organization we need to keep, and which are the organization we need to break. Like obviously you would understand, no? Like to establish real spirituality, we need to kill or like remove all of these fake babas from the equation because they cannot be babas because they are not enlightened and they have amassed like huge amount of people also. Like one of the key things which you can tell is like by the behavior of the ashram that I am staying in. So it's named Sanseva Ashram. Now tell me one thing, like what is ashram for? Ashram, what is it for? It is for enlightenment only, no? A place to study and get enlightened. So if an enlightened being, like that is the highest state the ashram can achieve, anyone in the ashram can achieve. And the ashram people charge him money. Basically, that is their god only, no? They are worshipping a god, but then they are asking the person who has seen God money. That is very clear that those people are not the people of God. You get it? I'm not talking about hotel here. See, that is the difference. If I go to a hotel, it's a commercial entity. Now in ashram, if people are donating and the ashram is run by donations, like why, who are people donating for? People are donating for enlightened beings only, no? So that donation is to actually take care of those beings. The place is built only that, like assume that, Ram comes on the earth. And the people are worshipping Ram, okay, in the ashram, in the temple, they are worshipping Ram. They are worshipping Raghav. Okay, so if Raghav comes, and that ashram charge Raghav only, the one they are praying to, the one they have like proper temple setup for, that same Raghav, they ask for money. Like it's, that clearly shows no, that they are not really worshipping Raghav, that they are just pretending. I mean, it's a technical point only. There's nothing like. Like, because ashram is a spiritual place, it's like a temple. Like in a temple, if God wants to stay, because temple is the home of the God, no? Like in a temple, if the real God wants to stay, let's say Krishna comes and he says, I will stay in this Ram temple. And people are like, how are you? And he is like, I am Ram. And this is my temple. This is my house. But people are like, oh, how can you be Ram? Ram is Murti only. Our Ram is Murti only. Our Ram doesn't come live. So basically, these are the Hindus who subscribe to the Muslim belief that God cannot come in their own creation. You understand? They want God in the Murti form only. Like, if the real God comes, then it's a no-no for them. Because their ego will be exposed, no? The ahankar will be exposed. Like, who will be afraid of real God? Who sees through everything? Who will be afraid? Because you cannot lie to the real God. He sees you. You cannot pretend. You cannot like create a fake identity. He sees your level of consciousness. So then you will be afraid. No, if you are a fake person, if you are a fake spiritual person, you will be afraid. Because you know that you have done a lot of bad acts. And your karma like sheet is actually very bad.
So this Sanseva ashram put it in the deleted category basically, with not spiritual. So I have marked you a lot of people, no, who are like verified, like Premanand Maharaj, Vishwananda, in the current living ones, like Sri Ravi Shankar, then Sadhguru obviously, then B.K. Shivani ashram, like Brahma Kumaris, ISKCON. Shri M. This, what's the name of the ma? Oh, she is amazing. I used to hear so much of her stuff. Anand Murti Guruma. Anand Murti Guruma. Swami Sarpi Anand, basically Ramkarshan Brahman's lineage. Swami Vivekananda lineage. Advaita, Vedanta. Even in Buddhist, this Plum village, the Buddhist monastery in France, like Thich Nhat Hanh, like I have heard, like I've tried a lot of his meditations, and even when I was not enlightened like that time. There's a one ma, this ma also, one Mali, what's the name? Like Bhavesh, you know, that famous YouTuber, he's her disciple. This Swami right here, Paramartha Niketan, one. So these are all real ashrams, understand? Because they are founded by people who are enlightened. So here there is a chance for enlightenment if you follow the process, what they are telling you to do. Like other places, they are not even going for enlightenment. That is like some kind of scam or like time pass or a lot of times exploitation and everything. A lot of people, I will add to the list. I forget the name a lot of times now. There is this lady, she Minu. They are enlightened masters, you know. So, knowledge wise, like a lot of disciples are also good. Like Krishnamurti, but Krishnamurti cannot have any ashram because that path is very different. This ashram you remove from the list for sure. Like
basically remove all the organizations associated with this Sankaracharya network, because there is a lot of ashrams and temples which is like traditionally connected to this Sankaracharya network. Because when Sankaracharya founded this network, he connected everything. He basically, the mutt were kind of like the command center of that area. You understand? Like all the other temples will be under that temple, and the local Sankaracharya will sit and command over that. So lot of these traditional places, and we are like proper Brahmin mindset and all of that, they are connected to that network, and that network is like still believing in like the old values, like of not like the main form of caste system, but the caste system based on birth. I had a long discussion with like one of his guys. No, finally, like he went to the lowest. Like he started abusing Sadhguru, even after telling like he is my guru. Like, so in my friend, he like say, oh, this guy did this guy did that, and I'm just listening. Like, okay, because I'm just taking data. For me, it is like, okay, tell me, how do you think really? Like, I know myself. No, I know myself, and I know Sadhguru, and I know Shiva. How would I be afraid of anyone in the life? Especially like stupid people like him, they're so arrogant. He had a board outside his place saying like Shudra not allowed. This is basically what people have not understood. It is like the evilness that is painted on the good Brahmins is actually these bad Brahmins who like Pandit Nehru. Like he was a Brahmin only, because these Brahmins, they actually don't care anything about it, about the truth, about enlightenment and all of this. All of these are learning proper like organizations now. They are in the power trip, just like the Pope and all the other religious heads, you know. Because in India, if you see, this is the only structural equivalent of like a church kind of structure which controls everything. You understand? Otherwise, in India, like spirituality is free. Like you are free to explore your own path and become a guru and open an ashram like that. But this way, they basically just do the same thing that the court system, the judiciary system does. They elect in between themselves only. Like if I go and challenge them, okay, how are you, Sankaracharya? I know more than you. I should head all of the temples. But there is no provision like that. Although the original Sankaracharya actually did that only. You get it? Like he actually defeated all the local people in debates, and then they had to submit to him. So that is how he was able to like take all the temples of the India under his control. And then he divided it into like 4 zones. He established 4 mathas, and then they were like the local head will be elected and all of that. समझे? हिंदी में समझाए? हिंदी में समझाए? देखो, भारत में बहुत अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फॉलो हो रही थी. कोई अघोरी है, कोई वैष्णव है, कोई काली माता का भक्त है, कोई कार्तिकेय का भक्त है, कोई स्कंद की पूजा करता है, कोई तांत्रिक तरीका फॉलो करता है, कोई ये तरीका फॉलो करता है. हर तरीके के अलग अलग टाइप के चीजें चल रही थी. जैसे शंकराचार्य आए तो उन्होंने क्या किया, अपने अद्वैत के ज्ञान से इन सब लोकल जो ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, मतलब क्या, ये चीजें एग्जिस्ट करती है टेम्पल के अराउंड ही. लाइक
कोई एक प्लेस होगा, उसके टेम्पल के अराउंड ही आश्रम बनता था, मतलब लाइक एक तो मेन टेम्पल होगा, उसके अराउंड ही आश्रम होगा। तो उन्होंने लाइक जो अपने ज्ञान से डिबेट करके, ठीक है, उनके जो लोकल हेड्स थे उन सबको हरा दिया। जो उस टेम्पल के लोकल लोकल टेम्पल के जो मठाधीश थे उन सबको हरा दिया। चाहे इस टाइम पे ऐसे ही होता था, यदि तुम हरा दो, चैलेंज करो उसको कि भाई तू एनलाइटेंड नहीं है, मैं एनलाइटेंड हूँ और मैं प्रूव कर दूँ कि मैं हूँ, तो उसके बाद वो उसको मेरे पाथ में कन्वर्ट होना पड़ेगा। लाइक ये कन्वर्जन का तरीका दे के रखा था उन्होंने। लाइक यदि कन्वर्जन करना भी है तो ऐसे कन्वर्जन होगा। उसके बाद उन्होंने उस सारे क्या किया, जब उनके नाम पे ही हो गए सारे टेम्पल, मतलब वो सारे टेम्पल में उनका ही तरीका चलेगा। तो उन्होंने उसको ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसमें उन्होंने 4 लाइक वो बनाए, धाम बनाए, मठ बनाए वहाँ पे, और उसको लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इस मठ के अंदर इसके लोकल के जो सारे जो टेम्पल हैं वो इसके अंडर होंगे। लोकल गवर्नमेंट मतलब ना। तो भारत में अभी भी बहुत सारी जो ये ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली जो कि शंकराचार्य लाइक पर ब्राह्मण फैमिली से आए थे, तो जो उस नेटवर्क में थे, जो अभी जो शंकराचार्य बन रहे हैं वो वहीं से आए हैं। समझे? शिवा को बुलाऊं समझाने के लिए? से चर्च के अंदर भी ऐसे सिस्टम होता है कि भाई जो इटली में जो पोप बैठा है वो हाईएस्ट चर्च है, सबसे बड़ा। उसके बाद लोकल लोकल हेड्स होंगे कि हाँ भाई इंडिया का हेड ये है, इस मंदिर में जो बैठ जाता है, यहाँ का हेड ये बंदा है, यहाँ का हेड ये बंदा है। फिर उसके नीचे और लोकल चर्चेज होते हैं। तो वो ये प्रॉपर लाइक इनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। तो यही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया था शंकराचार्य ने। बट उसमें दूसरे शंकराचार्य तो पैदा हुए नहीं एनलाइटेंड, लाइक उसको बेसिकली ट्रेडिशन को ये ब्राह्मण लोगों ने हड़प लिया। और ये जो ब्राह्मण लोग थे वो एनलाइटेंड वाले ब्राह्मण नहीं थे, मतलब ये बर्थ वाले ब्राह्मण थे। इनको कुछ ज्ञान वाल कुछ नहीं है, इनके पास किताबें थी लाइक। जबकि शंकराचार्य जो थे उनके तो ऐसे पूरा छुआछूत के ऊपर, तो उन्होंने पैर पकड़े हैं चांडाल के। मतलब जब उसने उसको डिबेट में हरा दिया, क्योंकि उस चांडाल ने उसको डिबेट में हरा दिया, जैसे ये दूसरे लोगों को हराता था जा जाके कि हाँ अब मैं हरा देता हूँ, अब तेरा मेथड मेरा मेथड हो जाएगा, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी बात सत्य रहेगी, तेरी बात झूठी हो गई है। तो उस चांडाल ने उसकी बात झूठी कर दी ना। उसने बोला कि तू बोलता है सब एक है, और फिर तू छुआछूत क्यों कर रहा है? सब यदि एक ही है तो उस एक के किसी एक हिस्से को लाइक छूने से तू मना क्यों कर रहे हैं? समझे आप इस बात को? जब वो एक ही है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहां से आ गया कि ये वाली चीज अलाउड नहीं है, या ये वाली चीज वो एक का हिस्सा नहीं है क्या? वो वाली चीज भी तो उस एक का ही हिस्सा है।
उसने इसको बहुत आसान तरीके से समझाया ना। उसने बताया कि जो जो सांस मैं बाहर डाल रहा हूँ, उसी हवा में से फिर तू सांस अंदर ले रहा है। मतलब मैटर तो एक्सचेंज हो ही रहा है। तो झूठा तो हो ही रहा है। भाई वो बोलती अलग मेथड है, उसको प्रैक्टिस नहीं करती है। वो बोलने में ज्ञान देती है कि हाँ वाइब्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, इसको प्रोग्राम करना चाहिए, ये सब। बट उसकी वो प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बातों में तो किसी चीज़ में बिलीव करती ही नहीं है रियल लाइफ में तो उसको मैं वैसे ही डालूंगा कि इसको प्रैक्टिकल का रियल एक्सपीरियंस नहीं है, इसको सिर्फ थ्योरी पता है। तो उसने शंकराचार्य ने जाके फिर उस चांडाल के पैर पकड़े। भलाई भाई मान गया मैं, गलत था मैं, पूरी तरीके से एनलाइटेंड नहीं हुआ था मैं। और उसी के लिनिएज के जो लोग हैं, ये एक्चुअली छुआछूत को प्रमोट करते हैं। तो एक्चुअली वो रियल शंकराचार्य के फॉलोअर्स है ही नहीं, जिस तरीके से ये खालिस्तानी रियल गुरु नानक के फॉलोअर्स नहीं है। समझ रहे हो भाई? रियल गुरु नानक ने तो हिंदू धर्म की, राम मंदिर की रक्षा की थी, उसके बाकी वाले गुरुओं ने भी रक्षा की थी, उन्होंने भी मंदिर बनवाए थे। और उनको मारा किसने था मुझे ये बताओ? ये तुम इतना बड़ा था शहीदी दिवस, हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, मुझे ये बताओ ना, बलिदान लेने वाला कौन सी कौम थी? कौन सी कौम थी बलिदान लेने वाली? जबकि उल्टा हो गया है। समझ रहे हो? जिस कौम ने उस गुरु को बलिदान दिया, ये खालिस्तानी उनके साथ बैठे हुए हैं। मतलब वो मुस्लिम लोगों के साथ गठजोड़ बनाए हुए हैं। और जिन लोगों को लिए उन गुरुओं ने काम किया मंदिर बनाने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, उन लोगों से उसको लाइक अलग कर रहे हैं। तो वो गुरु, उन गुरु के चेले थोड़ी हैं वो तो अपना ही खेल खेल रहे हैं। वो गुरु ने तो अलग बात बोल के गया था। गुरु का जीवन देखो कैसे जिया उसने। क्या उस 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 टाइम के इस्लाम ने तुम्हारे गुरुओं को एनलाइटेंड बीइंग माना? माना। बट उस टाइम के हिंदुओं ने तो तुम्हारे गुरु को एनलाइटेंड बीइंग माना कि हाँ ये भी गुरु है, ये भी एनलाइटेंड है। क्या उन्होंने माना? इतिहास जाके देखो अपना, चेक करो, माना उन्होंने? तो हिंदू तो वो, उनको तो धर्म से फर्क नहीं पड़ता था, उनका था कि हाँ ये अपने तरीके से एनलाइटेंड हुआ है, हाँ ये एक गुरु है, एक और गुरु आ गया हमारी उसमें। बट उन लोगों को तो, उन लोगों ने तो तुम्हारी बलिदानी ली है, मतलब। क्योंकि उन लोगों ने नहीं मानना था ना उनको एनलाइटेंड गुरु। तो ये तो उल्टे ही चल रहा है ना पूरा। गुरुओं, जो मेन गुरु की जो टीचिंग है, ये पूरी उसके जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये पूरा उसकी टीचिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये पूरी शंकराचार्य नेटवर्क
सिमिलरली ये पूरा लाइक खालिस्तानी, ये एक्सट्रोवर्ट, इवन ये अकाल, ये वाले भी लोग मिले हुए हैं ना, ये भी खालिस्तानियों के सपोर्ट में ही बातें करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये अकाली दल, वो अकाली दल आया तो वो अकाल से है, सत श्री अकाल से, बट वो अकाल का कोई दल नहीं है। वो अकाल के लिए कुछ नहीं करता है, वो अकाल से कोई मतलब नहीं है उस दल को। ये पूरी एसजीपीसी जो बनी हुई है, ये ऐसे ही है ना कि बेसिकली जीसस के ट्रुथ पे एक फर्जी पोप ने कब्जा कर लिया, समझ रहे हो? वो बन गया कि हाँ ये बाइबल की नॉलेज जो है वो मेरे उसमें गार्ड में रहेगी अब। और वो फिर कुछ भी अनाप शनाप करा रहा है जीसस के नाम पे। ऐसे बहुत सारे हैं ना, मतलब अभी मैंने जो सिद्ध वाले हैं उनका नाम बताया है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब मेरे को अभी एग्जैक्ट नाम मैं देखता नहीं हूँ, मैं ऐसे ना एनर्जी देखता हूँ उनकी ही कि हाँ इसकी एनर्जी कैसी है, लाइट एंड डन। अब ये निकाल रहे हैं ना ये आश्रम वाले मेरे को यहाँ से, इनको अब बेचैनी हो रही है, क्योंकि मैं कर्म के हिसाब से हिसाब कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ ये इंसान इस लायक नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से हिसाब करता हूँ। यहाँ पे कोई तो, बट इनको ये सोचते कि दिखावे के ऊपर चलेगा, कि दिखावे के ऊपर कैसे चलेगा यार, तो असली भगवान की तो तुमको परवाह ही नहीं है। तुम तो सिर्फ अपनी बिजनेस चला रहे हो, मूर्ति पूजा करके अपने, हाँ फूल ये बेच के, फूल बेच के, पूजा की सामग्री बेच के, ये पूरा इन्होंने ऐसे लगाया हुआ ना। ये जो यहाँ पे गया था मैं, कौन सी जगह ये जहाँ पे शादी हुई थी उनकी, त्रियुगी नारायण, जो त्रियुगी नारायण में गया हूँ, वो मेरे से ही बकचोदी कर रहा है, बोलता है, तुमको विष्णु को इसकी जगह के बारे में बताऊं? लाइक भाई मैंने कराई है शादी यहाँ पे, तो मेरे को बताएगा कि भाई तू लाइक तो लाइक तू अलग ही इंसान है यार, मतलब तू भगवान को नहीं पहचानता, जिसने कराई है जहाँ पे शादी, जिसके ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है, वो ऊपर से वो लकड़ी बेचते रहते हैं कि साथ में अपना बिजनेस चला रखा है उन्होंने, बाहर भी पूरा बिजनेस चला रखा है। ये तो मैंने तब भी रिव्यू दिया था कि कि त्रियुगी नारायण में ऊर्जा ठीक है, बट वो जो पूरी जो मैनेजमेंट है वो फर्जी है वहाँ की। फिर वो लकड़ी बेच रहा है कि यार ये उनकी विवाह की शादी की जो वो था, ये जो हवन जो था, उसको जलता रहना है, तो आप इस लकड़ी को लेके इसमें डाल दीजिए, ये जलती रहेगी। ये सब क्या है ना, ये पुराने टेम्पलों पे कब्जा कर लिया ना इन्होंने, हर जगह पे। यही तो हुआ था मेरे साथ, वहां पे भी यही हुआ था। एक ऐसे ही टेम्पल में गया था ना मैं, कमलेश्वर महादेव, तो वहां पे जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो बिल्कुल ही धूर्त लोग थे, मतलब शराबी नशेड़ी वाले टाइप के। मंदिर पे कब्जा किया हुआ है, और मंदिर बहुत पुराना है वो अपना भाई बिजनेस चला रहे हैं, अपना हिसाब से सब करते हैं वहां पे, कोई मतलब नहीं है उनको। तो उनसे फिर कहाँ सुनी हुई ना, पूरी लड़ाई वड़ाई हुई भाई वहां पे, तो पूरी लाइक लाइक जीने मौत वाला वो हो गया था, लाइक वहां पे जान भी जा सकती थी। तभी तो आया मैं वहां से, उस टाइम पे तो क्या था, लाइक पूरा कुर्ता फटा हुआ है, पूरा सिर खून खुना हो रखा है, ना चप्पल है हाथ में, लाइक मोबाइल की बैटरी गई हुई है, और 12 बजे वो है 8 किलोमीटर जंगल के अंदर, प्रॉपर जंगल के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं है वहां पे गाँव वाँव मतलब। और वो ट्रैक भी ऐसे ट्रैक ट्रैक टाइप का भी नहीं है, मतलब थोड़ा रफ वाला है, अंधेरे में, पिच अंधेरे में। भाई उतर के आया था, शिव जहां बोलते थे ना कदम, वहीं पे कदम रखता था, लाइक यहाँ पे रख, अब यहाँ पे रख, अब यहाँ पे रख, अब यहाँ पे रख। धर्म का साथ नहीं छोड़ा कभी भी। पुलिस की कंप्लेन भी की मैंने उसके बाद उसकी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे असोल्ट केस का ये बनाओ इसके अंदर।
क्योंकि उसमें तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मतलब मैंने थोड़ा सा भी हाथ नहीं उठाया, समझ रहे हो, बिल्कुल वन साइडेड वायलेंस। सो उसमें तो कुछ बनता ही नहीं है केस, इस लाइक कि भाई तुमने जब कुछ हाथ ही नहीं उठाया फिजिकली, लाइक बोलने पे थोड़ी ना कानून लगता है। तो बोलने पे कानून लगता होता तो फिर ये मानहानि के वो दावे नहीं होते, वो क्रिमिनल केसेस होते, समझ रहे हो। और वो वही फर्जी पुलिस, सब कुछ फर्जी। पुरोला पुरोला जगह थी ना वो। फोन भी गुम गया था मेरा आईफोन रात को, वहां पे उस पूरे उस पे बहुत परेशान हुआ मैं पूरा। फिर फोन की मैंने मिसिंग की रिपोर्ट कराई, फोन भी पुलिस वालों ने कोई हेल्प नहीं की रिकॉर्ड करने में ना, जो कि मैंने उनको गांव में बता दिया था कि उस गांव में ही छुटा है भाई। उसके बाद वही मेरे को आगे बढ़ना था, क्योंकि इस टाइम पे मैं साधना में था कि एक जगह पे एक ही रात रुकना है। ये दो दो नियम बता के रखे थे ना शिव ने, कि सिर्फ चलना है और एक जगह पे एक ही रात रुकना है। ये फॉलो कर रहा था ना मैं, तो फिर मैं तो ठीक है अपना, जो उन्होंने शिव ने भगवान ने बोला कि कोई नहीं, अब आगे बढ़, छोड़ दे उसको, टेंशन ना ले तू। सब सब हिसाब किताब होगा, वक्त आने दे। और ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, यदि तुम सही में अच्छे साधु संतों से मिलोगे ना, वो तुमको बहुत बताएंगे कि ये मंदिरों के आसपास आके ना ये नशेड़ी कवेड़ी लोग ये फिर लाइक हरकतें करते हैं, कब्जा करते हैं। और क्योंकि ये बहुत कॉमन है भारत में एक्चुअली। बहुत और भी साधु संतों के साथ बात हुई ना मेरे को, नर्मदा वाले एक थे, उनको हनुमान में गाइड कर रहे थे, तो इस वजह से शिव बताते थे क्या करना है, उसको हनुमान बताते थे। उसके साथ घुमा मैं, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने वही ये सब भी चीज़ें बताई कि मोस्ट ऑफ द आश्रम जो है वो फर्जी हैं, लाइक ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि वो भाई वो 30 साल से साधु था, वो पूरा उसको पूरी स्ट्रक्चर वगैरह को समझता था कि हाँ ये गिरी, इनमें भी बहुत स्ट्रक्चर होती है ना, ये गिरी है, ये नाथ है, ये अखाड़े का है, ये अखाड़े का है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला ना कि वो लाइक भाई मैं उस अखाड़े का हूँ, मैंने ये सब किया हुआ है, ये देखो मैं विदेश में जाके भाषण दे के आया हूँ, ये देखो मैंने ये किया है। हाँ पे उस आश्रम में गया, उसमें वही डिबेट हो रही थी कि वो गिरी ही बनेगा, नाथ कैसे बन सकता है। अब जैसे ये आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ, ये नाथ उसका है, इसलिए इसमें आदित्यनाथ है ये। बहुत तो कुछ है ना, तुम लोगों को जानने के लिए, तुम्हारी चेतना को ये सब समझने के लिए स्ट्रक्चर, कि एक्चुअली में तुम्हारे आसपास वो जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किससे कनेक्टेड है। ऐसे ही तुम पूरा इनका सिस्टम पढ़ना, ये मुस्लिम लोगों का कैसे चलता है, कि कौन सी सोसाइटी है जो सेंट्रल सोसाइटी है जो इसको पूरे को मैनेज करती है, फिर कौन कौन से लोग हैं जो रीजनल लेवल पे लाइक पावर होल्ड करते हैं, लाइक वो फिर वो मदरसों में कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे सिलेबस डिसाइड होता है, इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये सब कौन सा डिपार्टमेंट है। इन्होंने पूरा बना के रखा होगा ना। ये लोग उसी पे लगे रहते हैं, इनका पूरा 24 घंटे काम ही वही होता है कि डेडिकेटेड टू देयर धर्म। अब उनका धर्म है डीमन का धर्म, तो डीमन को पूजेंगे साले। मतलब एक्चुअली में तो डीमन भी मेरे ही है मतलब। बट वो यदि मेरी बात माने ना तो फिर वो मेरे कैसे हुए, तो उनको वो चीज़ समझानी पड़ेगी। वो चीज़ समझानी पड़ेगी उनके लिए।
दूसरे लोक में भेजना पड़ेगा पहले उनको, क्योंकि वो भूल चुके हैं ना वो लोग सत्य को। इंसानी लोक से निकाल के दूसरे लोक में डालेंगे। भाई देखो ये डीमन लोक है, ये पाप का ही लोक है, यहाँ पे करो पाप। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि वो पाप उस पुण्य वाले लोगों के बीच में कर रहे हैं। भाई तुमको लॉलेसनेस चाहिए, तुमको बिल्कुल वाइल्ड फैक्टर चाहिए, वाइल्ड ही रहना है, सिविलाइजेशन के ब्रह्मा के नियम के हिसाब से नहीं रहना है। मतलब ये यार ह्यूमन सिविलाइजेशन के तरीके से नहीं रहना है, ये मान के चलो। ब्रह्मा के उसमें तो रहेंगे ही, फिर भी वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के तरीके से नहीं रहना है। तो तुमको जिसके तरीके से रहना है, तुमको कुत्ते की तरह जीवन जीना है, तो तुमको कुत्ता ही बनाया जाए ना। इंसानी शरीर को क्यों वेस्ट कर रहे हो एक पोजीशन को? अभी ये इंटेंस होगी ना लड़ाई अब यहाँ से। जैसे ये लोग अभी ये अगेंस्ट हो गए मेरे, इन्होंने पलट लिया है, इनका समझ में आ गया कि ये अपना तो अंत आ गया है। तो अब मेरे को हेल्प भी चाहिए उन लोगों की जो सही में सच्चाई के साथ है। मतलब क्योंकि यदि कोई है ही नहीं सच्चाई के साथ, तो फिर मुझे लड़के भी कोई फायदा नहीं ना। मैं तो पूरी कम्युनिटी को खत्म कर सकता हूँ ना, मैं पूरी ह्यूमन रेस को ही दूसरे लोक में पहुंचा सकता हूँ। तो यदि कोई है ही नहीं तो मेरे को दिक्कत ही है, तो काम और भी आसान हो गया फिर तो। मतलब आश्रम में ही लाइक एनलाइटेड इंसान भी थी, लाइक भगवान से लोग पैसे मांग रहे हैं। वाह भाई वाह। और उसी भगवान की मूर्ति बना के रोज मंदिर में पूजा करते हैं। राजा तो बल्ला मेरे को देखते जाओ अभी सब लोगों का खुलेगा राज। एक से बढ़ के एक इगोइस्ट इंसान है इस दुनिया में ना। ये कांग्रेस वालों का ना बहुत, ये शंकराचार्य ये कांग्रेस से तो लिंक थे, तुमने देखा नहीं? ओपनली वो बोलता था कांग्रेस के समर्थन में, मोदी के खिलाफ बोलता था ओपनली। राम मंदिर वाले पूरे उसमें इनॉग्रेशन में उन्होंने ही तो मिर्ची डाली थी। जब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सब लोग यूनाइट हो रहे थे, तो न्यूज चैनल पे जो नेगेटिव न्यूज जो डाल रहा था राम मंदिर इनॉग्रेशन के बारे में, वो कौन किसको लेके डाल रहे थे? इन्हीं लोगों को लेके डाल रहे थे वो लोग। कांग्रेस वाले इनको यूज कर रहे थे कि देखो अब मोदी जो है वो नाराज है इससे लोग। पूरा यूज किया ना उन्होंने उस टाइम पे, तो क्योंकि उस टाइम पे तक इन्होंने असली ताकत नहीं देखी थी राम की। तो इनके बाद में समझ में आया, तब पलट रहे हैं मतलब। ऐसे बहुत सारे हैं ना ये लोकल, इन सबको साफ करना है ना मतलब। बाकी सदगुरु को ये पता होगा कौन कौन हैं, जो कि वो बहुत पुराने टाइम से हैं वही, तो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो लाइक रिस्क, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की थी ना कई बार ऐसे कि ये सारे गुरुज वगैरह कनेक्ट करके कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन बने, बट उनको भी महसूस हुआ भाई ये तो एनलाइटेड ही नहीं है भाई, अवेयरनेस ही नहीं उस साल की। जैसे मैं मेन तुमको बताता हूँ ना कि जिस इंसान को ये अवेयरनेस भी नहीं है कि वो अपना कूड़ा कहाँ पे फेंक रहा है, तुम क्या सोचते हो? उससे कॉन्शियसनेस एनलाइटेंड लेवल पे हाई है, लाइक सीरियसली, लाइक उसको इतनी सी कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब समझा है ना मैंने तुमको, कि किस लेवल पे तुमको ज्ञान है कि तुम क्या कर रहे हो, किस लेवल पे तुमको समझ है कि अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे बोल पा रहा हूं, ये विचार कैसे आ रहे हैं मेरे अंदर, ये वाले, ये ज्ञान मैं कैसे दे रहा हूं, ये सब कैसे हो रहा है, ये यूनिवर्स क्या है जिसके अंदर मैं ये इंसान के वाले ऐसे शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं।
ये क्यों जन्म लेता है, क्यों वहां जाता है, वो सब ज्ञान ना। जिसको ये नहीं पता कि जिसको कूड़ा कहाँ पे फेंकना है, वो इंसान एनलाइटेंड है, मतलब तो वो क्या लगता है। तो जिस इंसान को इतनी कम लेवल की कॉन्शियसनेस है, मतलब कुछ कुछ बोलते ना लोग, आर्बिट लोग मिलते ना मेरे को एनलाइटन होने का नाटक करते हुए, बोले तो मुझे मेरा शिवा मिल गया। मतलब शिव तो एक ही है ना, मतलब तो शिव तुम्हें कैसे मिल गया, तुम पार्वती हो गया मतलब। इसका मतलब तुम तो लाइक आदि माता हो फिर, जगत माता जगत पिता, जगत माता को जगत पिता मिल गया। ये मेरा शिवा क्या होता है, जब तुम खुद शक्ति नहीं हो तो वो शिवा कैसे मिलेगा तुम्हें। ये सब ट्विन फ्लेम वाले नोटंकी वाले लोग हैं ना, ये ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम सिर्फ एनलाइटनमेंट के बाद रियलाइज होता है कि तुम्हारी ट्विन फ्लेम क्या है। वो दोनों साइड से एनलाइटेंड होने चाहिए। वो राम और सीता दोनों एनलाइटेंड थे ना। सीता ने तो वो जो धनुष राम ने तोड़ा था, वो बचपन में एक उंगली में उठा दिया था, ये लगी ये ले। तो राम के तो हम तोड़ने पे ऐसे वो करते हैं कि भाई लाइक शिव का धनुष लाइक जो परशुराम के थ्रू आया था, कि उसने वो उसको तोड़ दिया, बाकी लोगों से उठ ही दे रहा था, सीता ने तो उसको उंगली पे उठा दिया था। ये सब बेसिकली वो क्या रहा है ना, अभी मैं ये मिथ्स क्लियर कर रहा हूँ ना ये पूरी सीरीज में, कि कौन कौन से लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं उसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ कि ये वाली चीज तुम्हारी कॉन्शियसनेस लो कर रही है, हाई करने के बजाय। ये वाली चीज तुम्हारी ईगो को हाई कर रही है, लो करने के बजाय। जब ईगो लो जाएगी तो कॉन्शियसनेस हाई होगी, जब ईगो हाई जाएगी तो कॉन्शियसनेस लो होगी। आइडेंटिफिकेशन को खत्म करना, ये तो बेसिक स्पिरिचुअल मेथड है ना, ये तो सबको पता है। मोर इंक्लूजन, लेस आइडेंटिफिकेशन। बहुत बार कोशिश की ना इन लोगों ने, ये गांधी वाले गाने चला चला के मेरे सामने, ईश्वर वाला पुराने वाला जो गलत वाला भजन सुना सुना के, जो कि हर बार टोकता था मैं, भाई अल्लाह नहीं है मेरा नाम, अल्लाह भगवान का नाम हो ही नहीं सकता है। बट ये वही ये पैसे वाले कांग्रेसी टाइप के पूरे माइंडसेट वाले ना, पूरा नेक्सस है ये। तो जानबूझ के मेरे दिमाग में ऐसे फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। तो यदि वो मेरी कॉन्शियसनेस में एक्सेप्टेड हो गया तो वो अपने आप ही यूनिवर्स में हो जाते हैं वो चीज़ें। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें डालने की कोशिश करते हैं ना, इसलिए लाइक इसकी कॉन्शियसनेस में डाल दो तो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यही क्रिएटर है लाइक। कितनी तरीके से क्लियर कर दिया मैंने, ये बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसे हुए हैं यार ये लोग सही में, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के लोगों से जुड़ा हुआ नेक्सस है, मतलब एक टाइप के भी नहीं है। मतलब जैसे ये तो कुछ पहाड़ी लोगों का रेस्टोरेंट वाले लोग, फिर उसके अंदर जो आश्रम वाले जो लोग जो रह रहे हैं, फिर जो आश्रम के जो रुकवा रहे हैं, मतलब जो क्योंकि जो रह रहे हैं वो तो लाइक किसी ट्रेडिशन से होंगे या कहीं से आए होंगे, जो रुकवा रहे हैं उनका तो ट्रेडिशनल बिजनेस है ये, वो तो बहुत टाइम से ऐसे ही है ना वो। ये सब ऐसे ही करते हैं ना। तो कमलेश्वर महादेव में जो एक्चुअली एक और साधु था वहाँ पे, तो बेसिकली ये तो ब्राह्मण वाले लोगों ने तो कब्जा किया हुआ था पूरे टेम्पल के ऊपर, बट एक साधु भी की भी कुटिया थी वहाँ पे साथ में। तो वो एनलाइटेंड थे ना वो, तो
वो यही बोलते थे ना उनके सामने भी, जैसे बेसिकली चार पांच चेले चपाटे रहते थे वो जवान जवान से। वो भी बोलता था, बेटा अच्छा आशरफ पे नजर है तुम्हारी मेरी, इसलिए जल्दी मारना चाहते हो मेरे को। मुझे पता है आशरफ पे नजर है तुम्हारी, मतलब वो जगह पे कंट्रोल आ जाएगा ना उनका। उसने वो मैंने उसको दिखा दिया था ना, वो पहचान गया था मेरे को। मैंने उसको लाइट बॉडी दिखा दी ना अपनी, तो वो पहचान गया। तो उसके बाद उसने पूरी सेवा की, लाइक ये जैसे वो हलवा रखे हुए थे स्पेशल, वो थोड़ा थोड़ा देते थे प्रसाद के रूप में। बोला कि सारा हलवा बांट दो सब में। बोला कि इसको इसके लिए अलग से कमरा, इसके लिए अलग से कमरा जो है वो दो। कौन सा कमरा कहाँ से है, लाइक वो किसको वाला कमरा किसके पास है, ये वाला कमरा किसके पास है। बट उसके जो शिष्य थे बेसिकली वो चिढ़ गए इस बात पे। और फिर बाद में जैसे मैंने उनसे बोला ना कि उन्होंने आपके गुरुजी ने बोला था कमरा देने के लिए, तो वो लाइक नानू कर रहे हैं ये सब। भाई तुम्हारे गुरु ने बोल दिया भाई, तुम लाइक क्या बकचोदी कर रहे हो, तुम गुरु की बातें नहीं मानते मतलब। तो वो उनका पूरा इसी वजह से वो पूरा वहां पे ऐसा माहौल बना ना, लड़ाई वाला उस टाइप का। उस वाले स्टैंड पे बहुत आगे बहुत बढ़िया स्टोरी है तुमको पता नहीं है लाइक। उसके बाद ना रास्ते में लाइक बहुत कुछ हुआ रहा, तो फोन गुम गया, चार्जर। फाइनली मैं ना ऐसे किसी जैसे पहाड़ी जो खेत होते हैं वहां जाके सो गया, ऐसे ही बैठ के। इतनी थक गया था ना, बहुत थक गया था लाइक लास्ट में। सुबह में उठा लाइक 6-7 बजे, लाइक जो उजाला सा हुआ थोड़ा सा। अब पानी भी नहीं है लाइक, सामने से फिर लाइक देवी आई है एक ना। लाइक शी वाज जस्ट लाइक कमिंग फ्रॉम मी ओनली, लाइक इट वाज जस्ट लाइक दैट। ऐसे मैंने पूछा कि ये आगे वाला ये पुरोला जो जगह थी, मेरे को बताता है, थोड़ा मैप देख के चलता था ना मैं, कि ये पुरोलो का रास्ता कहाँ से है ना, वहाँ जाना है मेरे को। क्योंकि मेरे को तो आगे ही बढ़ना था, महादेव ने बता के रखा था कि हाँ यहाँ जाना है नेक्स्ट। जो भी हुआ हो मैं बस महादेव का फॉलो करता हूँ, लाइक जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी जैसे कुछ भी होगा यहाँ पे आश्रम में, अभी ये जैसे पूरा ये एंटी हो गए हैं, तो ऐसे एंटी तो बहुत बार हो चुके हैं लोग मेरे। बट महादेव मेरे को हमेशा निकाल लेते हैं ना चीज़ों से। लाइक तू टेंशन ना ले, तू चलता जा बस। तो उस जर्नी में वो जो देवी थी, लाइक वैसे बात हुई ना, उस बंदी ने, मैं ऐसी हालत में था ना उस टाइम पे, लाइक जैसे नंगे पैर, पैरों में कांटे कांटे लगे हुए, कांटे ही कांटे घुसे हुए पैरों के अंदर। ये भी अलग चीज है ना, पहाड़ में कांटे होते हैं उस टाइप में वहां पे, और अंधेरा मतलब ऐसा ही, खून वगैरह, लाइक यहाँ पे पूरा खून वगैरह है। लाइक ये कुर्ता तो मैंने नया पहन लिया था, बट जो धोती थी उस पर भी खून लगा हुआ था वो सारा। लाइक वो ऐसी थी कि कोई भी देख के ऐसे समझे कि ये तो बिल्कुल पागल है या इस टाइप का इंसान है, एंड नॉर्मल इंसान ना। ऐसी सिचुएशन में था उस टाइम पे मैं, लाइक पूरा होश में था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। बट उस देवी ने लाइक कोई डाउट नहीं किया यार, मतलब समझ रहे हो, लाइक शी वाज जस्ट लाइक कि हाँ हाँ बताओ आगे, अब बताओ। अच्छा ये ऐसे ऐसे है, तो वो बोले कि मैं भी वहीं पे जा रही हूँ, चलो साथ में। फिर बताया मैंने कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ये सब पूरा इंसिडेंट बताया ना मैंने उसको कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने उसको ये भी बताया, अब वो थी कौन ना, उसका राज जानना तुमको ना, वो कौन थी। तो मैंने उसको बताया, तो पहले उसने वहीं पे, जब मैंने बताया ना कि मैं ऐसे रात को यहीं पे सोया इस टाइप का, सबसे पहले तो उसने पूछा खाना खाया है क्या। लाइक समझ रहे हो तुम, लाइक भाई बल्दी में एक तो एक आर्मिड स्ट्रेंजर जो ऐसे लाइक किसी खेत में पड़ा हुआ सो रहा है, लाइक जो पता नहीं वही हालत कैसी है, लाइक धूल वगैरह लगे हुए है, खून आ रहा है उसपे लाइक, और उससे, और वो भी लाइक धोती वगैरह पहना, तो लाइक आर्मिड यूनिफॉर्म है, थोड़ी आर्मिड कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े नहीं है जो आम इंसान पहनता है। धोती को भी अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं मानते ना लोग बहुत सारे, तो ऐसे सोचते भाई क्या पहन लिया, ये क्या कर रहे हैं। ये वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक तो सुनोगे ना ये वाली, तो बहुत खतरनाक है यार ये। तुमको लास्ट में लेकिन मैं बताऊंगा नहीं ना वो थी कौन, तुमको बताना वो थी कौन।
फिर उसने सबसे पहले तो खाना खिलाया मेरे को, आलू के पराठे बनाए हुए थे उन्होंने, सब मस्त वाले में टिफिन लेके जा रही थी। तो लगी बैठो, एक खोला, ऊपर वाला डब्बा अलग किया, एक पराठा रखा है, एक फिर बोले पानी, पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल रखी साथ में, अच्छा ये पानी लो। तो पहले तो मैंने पराठा खाया, ठीक है, पानी पिया, चलो ठीक है अब चलो। नंगे पैर हो गए, मैं नंगे पैर चल रहा हूँ उसके साथ साथ। और बीच में मैं उसको वैसे ही पूछ रहा हूँ ना। अब देखो वो गांव की लड़की थी ना, और मैं एक तो थोड़ा अजीब, और जिस टाइप में लाइक दाढ़ी वाड़ी नहीं था ना, शेव था पूरा, और थोड़ा लाइक यंग टाइप का। अब एक ऐसे लाइक इंसान के साथ ऐसे लड़की जा रही है गांव वाली, और लाइक प्रॉपर बात कर रही है, ऐसे कर रही है। मैं उसे बड़ा तुम्हारे साइड में लाइक, क्योंकि हम बहुत 3-4 गाँव से पास हुए ना, 7-8 किलोमीटर का रास्ता था, तो 3-4 गाँव के थ्रू गए, चलते गए वो चलते गए। मैं उससे बोलता हूँ लाइक ये तेरे को जज नहीं करेंगे ये लोग, लाइक कि तू ऐसे किसके साथ घूम रही है, किसके साथ बातें कर रही है, लाइक आई डोंट केयर और एनीबॉडी, बट एनीवन टेक, लाइक हिंदी हिंदी में बात करती थी ना वो पूरी। उसके साथ पूरा बहुत लाइक आध्यात्मिकता के ऊपर भी बहुत बात हुई। उसको मैंने पूरा बताया, फिर उसको मैंने पूरा ही बताया कि मैं कैसे निकला हूँ, कि ऐसे धर्म स्थापना करने का मेरे अंदर ऐसे हुआ है कि आज संसार को थोड़ा सफरिंग ज़्यादा है, इसको ठीक किया जाए। तो शिव मिले, फिर उसके बाद वो ऐसे ऐसे कराया उन्होंने, और अब ये अब करेंगे इसको ना वापस ठीक। फिर मैंने उसको भाप लिया ना, उसके थॉट्स पढ़ लिए, तो कि वो बेसिकली जोड़ नहीं पा रही थी उस चीज़ को, कि तू अपने आप को भगवान बोल रहा है और तेरे साथ ये सब हो रहा है, लाइक तेरे को लोग ऐसे पीट रहे हैं, तू अपने आप को भगवान बोल रहा है, लाइक। मैंने बोला ना यही तो लीला है यार, मतलब आप समझा करो यार। यार पहुंचे वहाँ पे, चप्पल वप्पल खरीदी, मिला दिलवाई का दुकान से चप्पल लेना। हॉस्पिटल ही बताया उसने कि लगे चोट वगैरह है, वहाँ पे जाके चेकअप कराना। क्योंकि उन्होंने ना ऐसे कान के ऊपर ही मुक्के मारे थे, तो मेरा कान जो था वो काफ़ी, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा था कि एक बार टाइम के लिए तो लाइक पूरा वो ऐसा हो रहा है ना, कहीं हियरिंग में कोई दिक्कत ना हो। उन सब सब लोगों का हिसाब करूंगा ना मैं अब 100x का रूल बन गया ना अपना, जिसने जैसा बर्ताव किया है उसका 100x उसको मिलेगा। अब देखो उन्होंने वो मेरे साथ यदि करने की इजाज़त है, अब वो पार, नहीं 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 नाम नहीं बताना मांगा ना, कौन थी वो, ठीक है। अभी उस टाइम पे यदि मैं वो वाली लीला नहीं करता, तो अब जब मैं उनके सिरों को तरबूज की तरफ फोड़ूंगा, तो मैं वो कर्म चढ़ता ना मेरे ऊपर। तो मैं पहले से बैलेंस करके रखता हूँ ना अपना, कि भाई देखो इस संसार का बेसिक रूल है कि यदि किसी को तुम मारना चाहते हो तो तुम मरने के लिए भी तैयार होने चाहिए, राइट भाई, इट्स लाइक बेसिक रूल नो। लाइक जो चीज़ मैं दूसरों को करना चाहता हूँ वो यदि मेरे साथ भी हो जाए तो मैं उसको जज नहीं करूँगा, तभी तुम वो चीज़ कर सकते हो, तभी वो धर्म के अंदर आएगी। कि हाँ भाई तू मेरे को थप्पड़ मारेगा तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है, तो बट अब मैं तेरे को ही मार सकता हूँ, इसका मतलब अभी जब थप्पड़ मारना जायज है तो फिर मैं भी तो मार सकता हूँ ना थप्पड़ यार, मतलब। ये ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ पहले ऐसे कर्म इकट्ठा किया ना, ऐसे इकट्ठा किया जा रहा है, इसका बैकअप बैकअप बैकअप। लाइक मैंने कैश ही नहीं कराया अभी तक, जितना भी इकट्ठा किया ना मैंने, मतलब जिसको तपस बोलते हैं ना, उस तपस को पहले कैश ही नहीं कराया कभी तक। मैं बस लाइक तपता ही जा रहा हूँ, तपता ही जा रहा हूँ, तपता ही जा रहा हूँ। यार इसमें वैसी वाली चीज होगी ना, लाइक तू साधना लगा के भगवान पूछ रहे हैं कि लाइक भाई क्या चाहिए, ये बोले कि नहीं, तुम ही चाहिए वो।
मान लो वो जवाब ला दे तो फिर से लगे रहो लगे रहो, फिर बोले क्या चाहिए, बोला कि तुम ही चाहिए हो, बोला कि क्या चाहिए, नहीं तुम ही चाहिए हो, नहीं चाहिए और कुछ भी। मेरे को एक ये यूपीआई वाला ये फ्लो भी डिस्कस करना है ना, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा यार, ये तो बहुत अनसस्टेनेबल सिस्टम है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया, क्योंकि इससे पूरी नेटवर्क बेसिकली इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। मतलब अभी इस वाली कहानी को पूरा करेंगे ना, उसके बाद डिस्कस करेंगे लाइक अभी जो करंट सिस्टम है उसको ठीक करने वाले बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की ना हमने, जियो पॉलिटिक्स और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स सब ये सब। मतलब अब मेरे को अपने आसपास ना वैसे वाले लोग चाहिए जो मेरी टीम में है। अब एनएफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया ना मैंने इन लोगों की, एनएफ बहुत संधि प्रस्ताव हो गए हैं भाई, ये लोग मेरे को ही दबाले चलते हैं भाई, ये लोग मेरे से ही पैसे, बंदा मेरे से ऐसे पैसे मांग रहा है जैसे कि मैं लेके भाग जाऊंगा, तुम समझ रहे हो? लाइक मैं उसको बोला कि ये यूपीआई वाला ही हुआ ना, मैं दुकान में शॉपिंग कर रहा था तो एसबीआई का सर्वर डाउन है, तो अब मान लो सब यूपीआई पे हो गया, लोगों ने कैश ही रखना बंद कर दिया, तो जैसे ही वो सर्वर डाउन होगा या तो एसबीआई का या यूपीआई वाले का जो भी मिडल है, वैसे ही तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी एकदम से डाउन जाएगी, तो समझ रहे हो? नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो उसका तुमने मीडियम जो है उसका ही सर्वर डाउन हो गया है, तो इसको पूरे ऐसे इंडिया के मॉडल के हिसाब से समझो कि कितने लोगों ने एक्चुअली उस टाइम पे उस सर्वर डाउन होने की वजह से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए होंगे, तो बोले ये चीज खरीदनी थी बट अब मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। तो तुमको भाई ये पहले पूरा ये कनेक्ट करने से पहले, ये पूरा यूपीआई ऐसे करवाने से पहले भाई पूरा कैशलेस ही कर दो, पहले ये सर्वर तो सही से बनाना चाहिए था। मतलब इतना दिमाग नहीं है तुम में, ये बेसिक बेसिक है ये चीज, मतलब कि साला ये सारी चीज यूनाइट कर दी बट जिस चीज पे यूनाइट किया वही तुम्हारी लाइक डिपेंडेबल नहीं है। ये कैसा बद दिमाग है यार, किसने बनाया ये सब? भारत में लाइक ये है क्यों नहीं है लाइक डेटा सर्वर्स पूरा ये बड़े वाले जैसे यूएस के अंदर है, वो क्या चीज है रोक रही है? मतलब मेरे को बताओ ना प्रॉब्लम क्या है, मैं करता हूँ ना सोल्व उसको, मेरे को बताओ क्या करना है, मैनिफेस्टेशन में डाल के अगली टाइमलाइन में हो जाएगा वो खत्म काम। तो इस बंदे को बोला ना मैंने कि बेसिकली सर्वर डाउन है अभी, क्योंकि मैं दुकान पे भी खरीद नहीं पाया था, तो मुझे उस टाइम पे मैंने बहुत ट्राई किया था लाइक दोनों ऐप में, गूगल पे भीम ये सब। तो बंदा क्या बोलता है मेरे को, हाँ अच्छा आप नंबर ले लो, जैसे ही आपका आ जाएगा ना सर्वर वैसे ही भेज देना। मैं साले तेरे को इतना भरोसा नहीं है, जब बोल दिया कि सर्वर डाउन है जैसे ही होगा वो कर दूंगा, मतलब भाई तो क्या सोच रहा है मैं तेरे पैसे लेके भाग रहा हूँ यहाँ से? मतलब इसका मतलब तूने मुझे एनलाइटेड इंसान माना ही नहीं है, तू तो मुझे चोरू चक्का समझा बैठा हुआ है, तुम तो मुझे गुरु मानते ही नहीं हो, मतलब मैं तुम्हारा गुरु हूं ही नहीं, मतलब तो फिर तो सही है ना, अपनी रियलिटी से निकालूंगा ना तुमको, क्योंकि ये संसार तो मेरा बनाया हुआ है। मैं तुम जो मेरे पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे मेरे बनाए हुए संसार में, मैं उनको क्यों रखूंगा यार? मतलब ये तो इलॉजिकल चीज है ना, मतलब मेरी मतलब तुम ये तो फिट ही नहीं बैठता, ये तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता है। मैं अपनी क्रिएशन में ऐसी चीजें अलाउड ही कैसे कर सकता हूं जो मेरे एग्जिस्टेंस को ही ना माने? तो वो तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ ना बेसिकली, फिर तो लाइक मैं अपना सुसाइड कर रहा हूँ, लाइक भाई मारो मुझे ही मार दो लाइक। और मेरा सुसाइड मतलब क्या, यूनिवर्स का सुसाइड? मैं ही तो यूनिवर्स हूँ यार, मैं ही तो हूँ क्रिएटर लाइक। तो इनको तो खत्म कर देंगे ना नेक्स्ट टाइम लाइन में, बट मेरे को फिर वैसे वाले लोग चाहिए ना अभी, क्योंकि ये अभी क्या है ना, मेरे को स्ट्रक्चर तरीके से काम करना है ना,
मैं बहुत सारे लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स ये सब देख रहा हूँ। मैं इन सब बारे चीज़ों के बारे में वरी नहीं कर सकता ना कि साला अब जो रहने की जगह है वहीं पे जो डीमंस है वो तुमको निकाल देंगे वहां से। साला मैं पता चला ट्रांस में बैठा हुआ हूँ, मैं पूरे जियो पॉलिटिक्स का मैनेज कर रहा हूँ ऊपर से टेलीपैथी में और वो बंदा बंदा चेकआउट करो। अब इस पूरे संसार को चलाने वाले को साला इतना भी नहीं मिलेगा मतलब। बट ये बेसिक चीज है कि ये जो नहीं मिलेगा तो फिर वो काली वाला रोल में जाएंगे ना। काली वाला रोल यही है कि देखो मैंने यूनिवर्स बनाया है, ये मेरी क्रिएशन है, तो मैं इसको चाहूँ तो पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। मेरे अंदर पूरी पावर है। पूरा डिस्ट्रॉय मतलब नो राइट एंड रॉन्ग, आई विल जस्ट डिस्ट्रॉय। राइट लेफ्ट एंड सेंटर, जो आएगा मरेगा। काली का भी वही रूप था ना, उसको फर्क नहीं पड़ता था। वो उसके सामने कोई, पहले तो वो सिर्फ राक्षसों को मार रही थी, बट धीरे धीरे जो भी सामने आ रहा था उसको ही मार रही थी। वे लगी ये ले मर जा, ये ले मर जा। काली भी है ना अपने पास, 3 डेटीज तो है ना मतलब। काली कृष्ण ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बैठाया ना मैंने इस युग के हिसाब से। यहाँ काली कृष्ण को हराने के लिए इन तीनों की यदि शक्ति कंबाइन की जाए, जैसे तुमने स्टोरीज पढ़ी है ना, जैसे दुर्गा माता कंबाइन होके बनी कि हाँ इन 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 देवताओं ने अपनी शक्ति दी, उससे दुर्गा माता बनी। तो ऐसे ही दूसरे जो बनते हैं, तो मैंने इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनाया ना अपने आप को। मतलब मैंने तो क्या ही बनाया, मैं तो शिव जो बोलते करता जाता हूँ अपने आप ही। उनको पता है कि हाँ वही क्या लाइक मैं सिर्फ शिव से कनेक्शन लगता था, वो फिर मेरे को दूसरे अपने दोस्तों वोस्तों से मिलवा देते कि देखिए ये काली माँ है, देखो ये सब मिलो, ये कृष्णा ये सब मिलो। तो एक तो ये यूपीआई वाला भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी इकोनॉमी पे यदि तुम सही में इम्पैक्ट लाइव यदि मेजर करोगे ना, तो लाइव इम्पैक्ट हो रहा है ये सब चीजों की वजह से। क्योंकि वो एसबीआई का सर्वर डाउन यदि है तो वो सिर्फ ये ऋषिकेश में डाउन नहीं है, इसका मतलब वो पूरी इंडिया में जितने भी एसबीआई से रन यूपीआई वाले हैं सबका ट्रांजेक्शन एकदम से रुक गया है। वो लोकल नेटवर्क की बात भी नहीं है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो कम हो गया है, वो उस बैंक का सर्वर डाउन है। बैंक का सर्वर डाउन मतलब जितने भी बैंक से रिलेटेड यूपीआई पेमेंट से अब सब रुक गई। तो ये जब सर्वर यूनिफिकेशन यदि पूरा ही कैशलेस वाले पे शिफ्ट कर दिया और यूनिफाई कर दिया, और तुमने सर्वर तुम्हारे बिल्कुल डिपेंडेबल ही है, तो तुम्हारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा। सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तुमने डिजिटल कर दिए, कोई लेखा जोखा है ही नहीं उसके अलावा। तो तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी ना मार्केट में मतलब। तो इस चीज को तो सॉल्व करो, मतलब डाल लो मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग की पाइपलाइन में। सिर दर्द हो गया भाई आज, एक लाइक ये कांग्रेसी वाली बंदे से भाई सिर दर्द कर दिया भाई। इस बंदे ने मेरे पे सवाल कर रही है, मैं सोचूंगी लाइक भाई मैंने बोल दिया ये सत्य है तो ये सत्य है। यदि तो मेरे सामने बैठी है तो ये बकवास नहीं कर सकती कि हाँ ये आप बोलते रहे हो बट ये चीज ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। नहीं मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएटर को नहीं पता क्या उसने कैसे बनाई है चीज। तो पता अलग पागल इंसान हो यार, बहस कर रहे हो मतलब सामने बैठ के। और जबकि मैंने उसको हर तरीके से डिफीट कर दिया ना, हर तरीके से डिफीट कर दिया मैंने उसको क्लियरली बोला देखो कर्म के हिसाब से होगा सेटलमेंट। कर्म जो है कॉज एंड इफेक्ट है, उसके हिसाब से भगवान ने ये यूनिवर्स बनाई है। अब जो चाहे वो किसी भी धर्म के हो लोग हो, चाहे वो कैसे भी हो, उनका कर्म का हिसाब देखा जाएगा। इस्लाम का कर्म का हिसाब देखा जाएगा। जो लोग इस्लाम में आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इस्लामिक हूं, तो उनको उस पूरी इस्लामिक आइडेंटिटी का कर्म बेयर करना पड़ेगा ना। मैंने भी तो पूरी सनातन आइडेंटिटी का कर्म बेयर किया है ना, क्योंकि मैं सनातन वाली आइडेंटिटी बेयर कर रहा हूं ऊपर से लेके नीचे तक। लाइक मैं सब लोगों को मैं ही फाइट कर रहा हूँ ना उनके बिहाफ पे, शंकराचार्य के बिहाफ पे, तुलसीदास के बिहाफ पे, गुरु नानक के बिहाफ पे। उनके ज्ञान को फैलाना। जो भी गलत काम हुए लाइक सनातन के नाम पे,
तो उनको पूरा मैंने क्लियर किया ना कि हाँ ये शिव और विष्णु का क्या रिलेशन है, ये ऐसा क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसा है। तो वो मतलब ये बेसिकली सिस्टम है ब्रह्मा का, कॉज एंड इफेक्ट वाला। ये लोग बेसिकली मैथमेटिक्स को डिनाई करने वाले हैं भाई। बोला कि नहीं नहीं, मैं उगाऊंगा, बीज डालूंगा आम का, मुझे चाहिए बेर। मतलब कर्म किए मैंने पाप वाले, बट मुझे चाहिए फल में पुण्य। भाई ये कैसे होगा यार, मतलब ब्रह्मा तो पागल हो जाएगा ये सब सुन के। लाइक मैंने कर दूंगा, लाइक ब्रह्मा की सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी तो तुम खुद ही खत्म हो जाओगे। फिर किससे बहस करोगे, लाइक बहस करने वाली है ही नहीं, कुछ सृष्टि नहीं बचेगी तो बहस किससे करोगे फिर। बकवास कर रहे हो मतलब। अभी इस्लाम वालों के कर्म का हिसाब बहुत खराब है ना, जैसे वेस्ट वालों के कर्म का जो आइडेंटिटी है उसका हिसाब किताब बहुत खराब है। तो इसलिए भाग रहे ना ये लोग कि ये भाई हमारा तो बहुत बकाया है, हमने तो बहुत पाप किए, अब हम फंस गए। तो ये बोलते हैं कि बेसिकली आज से पहले का सारा खाता जो है वो काउंट मत करो, अब हम आपके पाले में आ गए हैं, तो अब ऐसा होगा। ऐसे कैसे होगा? यदि मैं आता नहीं, यदि मैं ये सब ज्ञान को वापस लेके नहीं आता, तो तुम तो लगे रहते ऐसे ही जैसे तुम उल्लू बना रहे थे। तब थोड़ी ना तुम भगवान के पाले में आते, तब तो तुम वही पाप करते रहते क्योंकि वो पाप अलाउड था। तब थोड़ी ना तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागते एकदम से कि हाँ हाँ इस साइड जाना चाहिए। वो तो तब तुम हार गए हो इसलिए तुम बोल रहे हो, लाइक ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ना उल्टा। पहले जब तक ये जीत रहे थे तो तब तक ये पाप करते रहते कि हमारे पास पावर है, हमारे पास पावर है। जैसे ही दूसरे ने पावर ली, लाइक ओ प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो। लाइक लाइक भाई तूने भी तो मारा था, अब मारा था तो मार खाने के लिए भी तो रेडी रहे। मतलब ऐसे कैसे होगा यार कि तू तेरे टाइम पे तू तो मार दे, जब बट मेरा टाइम आया मैं ना मारूं वापिस। ये तो खुद तुम्हारे गांधी ने ही बोला ना, तुम्हारे मौलवी ने। मौलवी चाचा ने कि वैसा ही बर्ताव करो ना जैसे दूसरों से तुम खुद के लिए चाहते हो। तो तुमने दूसरों के साथ जैसा बर्ताव किया है वो तुमको मिलने के लिए भी तो तैयार रहो। तुम्हारे गांधी मौलवी ने भी यही चीज बोली है यार, मतलब। और ये हिसाब किताब ही है, कर्म का हिसाब किताब नहीं होगा तो कोज एंड इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली लाइक टू नंबर्स, इफ द कनेक्शन नहीं हट जाएगा उसमें से कि इस ये चीज करने की वजह से ये चीज होती है सृष्टि में, यदि वही हम मैथमेटिक्स से गायब कर दे हिसाब किताब ही, तो कॉन्शियसनेस की जर्नी, ये पूरा ये सब का सिस्टम कैसे चलेगा भाई। ये कॉन्शियसनेस पूरी इवॉल्व हुई है, ये धीरे धीरे अलग अलग फॉर्म में, एनिमल फॉर्म में, सब में, यदि वो पूरा हम याददाश्त को मिटा ही रहे हैं पुराना, तो यहाँ तक कैसे पहुंचोगे और आगे कहाँ से जाओगे, कहाँ जाओगे आगे फिर। मतलब ये बिल्कुल इलॉजिकल चीज है ना ये। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये बहुत सारे ये मुस्लिम लोग अभी पाला बदल रहे हैं, बट वो नाम नाम के लिए बदल रहे हैं। तो मैंने उनको सीधा सीधा बोला, देखो तुम्हारी पुरानी कर्मशीट दिखाओ, ठीक है, तुमने इतनी बार राम को गाली दी है, ठीक है, उसका 100 गुना तुमको मिल जाएगा, तुमको इतनी गाली खानी पड़ेगी। तुमने ये चीज बोली है उस भगवान के लिए, अब यहाँ पे ना कोई आम इंसान की बात नहीं हो रही है ना, उसने भगवान के बारे में बोला है। कि भगवान को, जो क्रिएटर है उसको बोला है। इतनी ज्यादा अहंकार और अज्ञान है उन लोगों के अंदर, और अब सब पलट रहे हैं, सबके सब पलट रहे हैं। अब वो रणवीर राम बन रहा है, ये सब जो मजाक उड़ाया करते थे, मतलब रणवीर तो है ही नहीं राम, कभी राम हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल ही एक राजसिक है। राम तो सात्विक थे, राम और बुद्ध बिल्कुल प्योर सत्व थे, मतलब प्योर प्योर लाइक सत्व, लाइक क्योंकि उसका तो कैरेक्टर वैसा ही है ना, प्ले बॉय टाइप का। प्ले बॉय टाइप का कैरेक्टर मैक्सिमम यदि वो एनलाइटेंड है तो कृष्णा हो सकता है, बट वो तो एनलाइटेंड भी नहीं है। मतलब कि हाँ उसने जो रासलीला की, उसको तो रासलीला भी नहीं बोल सकते भाई। तो ऐसे इंसान थोड़ी ना भगवान का रोल प्ले कर सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। ये व्हाइट वॉश कर रहे हैं ना, ये सोचते कि लोग उल्लू हैं,
इनको हमारा पास्ट तो याद रहेगा ही नहीं। ये पूरा कपूर खानदान, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स, यही तो सब चल रहा है वहां पे। इसके इसके ही तो बाप के बाप ये फिल्म इंडस्ट्री पे इनका भी पुराना कब्जा है ना। इन्होंने तो स्टार्ट किया था सिर्फ इस लाइक दादा का जो क्या था तो पृथ्वी राज और समथिंग, फिर वो लीडियज पे आता गया। मतलब ये उस टाइम के अमीर लोग होते थे जिनके पास टेक्नोलॉजी मिलती थी, कि मतलब फॉरेन से कनेक्शन था। अब उस टाइम पे फिल्म बनाना मतलब क्या, उस टाइम पे कैमरे वैमरे ये सब टेक्नोलॉजी तो यूएस से आती थी और या बाहर के देशों से आती थी। किसके पास एक्सेस होगा? पैसे वाले लोगों के पास। जैसे गांधी गांधी गया था साउथ अफ्रीका पढ़ाई करने, तो उस टाइम पे भी लोग जा रहे थे ना, मतलब बाहर के कनेक्शन था, बट वो आम इंसान के लिए नहीं था भारत के, वो सिर्फ ये पैसे वाले लोगों के साथ था मतलब। अब ये पूरा दाऊद का, ये पूरा बॉलीवुड कनेक्शन, ये जितने भी सारे जो भ्रष्ट हिंदू थे जो सब बकचोदी कर रहे थे, ठीक है, अब वो पकड़े गए ना। मतलब अब ये बोल रहे कि कर्म पे मत डिसाइड करो, जो कर्म पे नहीं डिसाइड करे तो किस पे डिसाइड करे फिर? लाइक तुम हो ही क्या, तुम कर्म का एक पुतल, लाइक फिर पेटला ही तो हो, और क्या हो तुम? तुम अपना लाइक पुराना स्टोर्ड जो तुमने एक्शन लिया उसका स्टोर्ड मेमोरी तो हो। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है ना मतलब। इनको साइंस से मतलब नहीं है ना, मैंने इसको पूरा विज्ञान समझाया ना, मगर तो वैज्ञानिक है इसको। वैज्ञानिक चीज को ओपिनियन होना मतलब क्या होता है? लाइक वैज्ञानिक चीज पे ओपिनियन होना क्या होता है? लाइक एवरीबडी इज अलाउड टू एग्जिस्ट, मतलब क्या है? ओम सत्य है तो ओम ही सत्य है ना, मतलब उसमें मैं कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मैं भी हो सकता है शायद, वाई नॉट, वाई नॉट, लाइक स्टूपिड है ना वो इंसान मतलब। उसको जानवर बना के भेजेंगे ना, उसको म वाले संसार में ही भेजेंगे जिसमें ऊ वाली साउंड हो ही ना। तो वो समझ में आएगा उसको कि ऊ का क्यों रेलेवेंस है। हाँ रशिया, आज ये बहुत सारे ये डीमन लोगों से फाइट हो गई ना मेरी, तो थोड़ा एनर्जी बहुत लग गई आज। वो वही ये फेक वाली बंदी है, और मतलब मेरी हर बात को काट रही है, मेरी हर बात को काट रही है, और लास्ट में बोलती है ओ इट वाज ए वेरी नाइस मीटिंग यू। मैं इट वाज नॉट नाइस मीटिंग यू एट ऑल, लाइक like make change yourself so that at least next time for me also it will be nice meeting you। लाइक यहाँ पे बकवास कर रही है, मैं उसको साइंस दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, ये सब दे रहा हूँ, और वो लास्ट में बोलती है एवरीबडी इज अलाउड टू एग्जिस्ट, नो एवरीबडी हैज ओपिनियन, नो व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ ओपिनियन में कैसे आ गया बे? व्हाट इज ट्रूथ तो मतलब ही है कि एब्सोल्यूट आंसर है वो। उस पर भी ओपिनियन बना ले भाई इनको। मतलब ब्रह्मा के बनाए हुए संसार को ये नहीं रहना है, ब्रह्मा के बनाए हुए संसार में अपना अलग से ब्रह्मा बना के संसार बनाना है। और फिर ये आश्रम वालों ने फिर तो ये सब डीमन सब अटैक कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। चाहिए जैसे जैसे मैं अपनी पावर बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपनी मैनिफेस्टेशन वाले उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, इनको पता है यार ये जीतेगा तो यही, इनको पता है लाइक भाई राजा तो यही बनेगा। मतलब जो जो है ही नहीं वो हार कैसे सकता है यार। मैं रूल बना दिया ना, 100 गुना लेंगे। जो मेरे बेसिकली ये पूरी दुनिया की क्रिएशन की लक्ष्मी तो मेरी है। लक्ष्मी तो मेरी है ना। अब जब लक्ष्मी मेरी है तो तुम मेरे से जब लक्ष्मी ले रहे हो तो मैं डिसाइड करूंगा ना उसको वापस कितना लेना है, क्योंकि मेरे से तुम लोन ले रहे हो बेसिकली पहले। कि मैं जो तुमको रेंट और ये सब बकचोदी दे रहा हूँ वो मेरे से तुम लोन ले रहे हो, मैं उसका 100 गुना वापस लूंगा ना। तो मेरे से मेरी लक्ष्मी ले रहे हो तो
उसका रूल है ना, मतलब कि भाई यदि तुमने मेरे से 1500 रुपये मांगे हैं मेरी बनाई हुई क्रिएशन वाली चीज़ मेरे को बेचने में, मतलब मेरे बनाए हुए सेब मेरे को बेचने में तुमने मेरे से 1500 रुपये लिए हैं, जबकि वो सेब भी मैंने बनाया है और जो बेचने वाला है वो भी मैंने बनाया है। तो वो पूरा सिस्टम ही मैंने बनाया हुआ है, और उसको सिस्टम को लाइक मुझे लाइक इंगेज कर रहे हैं, लाइक हाँ तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको 100 गुना तुमको वापस देना पड़ेगा जब अपना हो जाएगा ना एस्टेब्लिश। तो ये रूल बना दिया ना मैंने, ये टैक्स सिस्टम है मेरा। जिन लोगों ने मेरे को 1 रुपया दिया है उनको मैं 100 गुना वापस दूंगा करके। दोनों साइड होगा, मतलब ऐसा नहीं, ऑब्वियसली दोनों साइड ही खेलूंगा मैं, ऐसे बायस नहीं खेलता। बेसिकली जिस इंसान ने जितना प्यार दिया है उसको उसको 100 गुना वापस प्यार मिल जाएगा, जिस इंसान ने जितनी नफरत दी है उसको उसकी 100 गुनी नफरत वापस मिल जाएगी। तो बैलेंस्ड हिसाब है ना, मतलब। और ये होगा ना, अब तुम देखते जाओ। लेकिन पहले भी बहुत सारी चीजें मैंने बोली थी, तुमको लगती होंगी यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, देखो कर दिया ना मैंने। हो गया ना। आत्मा वगैरह जगा रहा हो ना भाई, इनके लोगों को क्या लगता है यार किस लेवल पे खेल रहा हूँ मैं। पता नहीं कितनी सारी लाइक डेटीज के आत्मा के साथ काम करता हूँ। देखते जाओ तुम। हार ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली मेरा हारना मतलब मेरी मौत, मेरी मौत मतलब यूनिवर्स की मौत, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ही चेतना हूँ यूनिवर्स की। बेटा तुम पूरे जो ह्यूमैनिटी है ना, ऐसे होल बहुत चालू बन रहे हो, इसलिए तो वही ना, ये कॉन्शियसनेस इस संसार में सिर्फ तुम लोग एग्जिस्ट नहीं करते हो ना, धरती माँ की कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करती है, गंगा माँ की कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करती है। तुमको क्या लगता है मैं सिर्फ तुम लोगों का क्रिएटर हूँ? उन लोगों को भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। उनके उनको न्याय कौन देगा, मतलब तुमने जो किया है उन लोगों के साथ उनको कौन न्याय देगा? अभी तो इंसान के खून से सिंदूर लगाएंगे ना धरती वालों की बात, लाइक टीका लगाएंगे, लाइक ये लो यहाँ से लाइन खींचते हैं मेरे खून की। बहुत खून खराब होने वाला ना अभी तो, पूरा मैनिफेस्ट करके रखा हुआ है, आ गया आग हर जगह। सब अभिमान को मारना ना, इंसान के एक एक अभिमान को। ओके नाउ आई एम बैक। चलो वापिस आ गया हूँ मैं। ये बेसिकली मेंटल ओवर हो रहा था ना बहुत देर तक, उनका जो पेंडिंग जो डेटा था उसको प्रोसेस करके वापस से अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया।
इसको समझाया था मतलब, भाई देखो ओम नमः शिवाय जो है, ओम जो है वो क्रिएटिव, जो क्रिएशन स्टार्टिंग जो एनर्जी है उसकी फ्रिक्वेंसी है। जब तुम ओम बोलते हो, जो वाइब्रेशन तुम एमिट करते हो वो उस फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन है। फिर तुम न म शी वा यह बोलते हो, तो ये जो 5 लेटर है ये अलग अलग एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी है, कि वो स्टार्टिंग वाली एनर्जी फिर इन फॉर्म्स में कैसे कोगुलेट हो गई, कि जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एनर्जी वाइब्रेशन ही तो जल है, वो एनर्जी अलग फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट्स कर रही है तो वो वायु बन गई। सेम एक ही एनर्जी फील्ड है ना, बट वो 5 भाग में डिवाइड हो गई। मतलब ओम नमः शिवाय बोलना मतलब ये बोल रहा है कि तुम उस 5 एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी की एनर्जी और ओम की फ्रिक्वेंसी की एनर्जी जो क्रिएशन है उस पूरे को तुम एक साथ बोल रहे हो, और पूरी कॉन्शियसनेस को तुम एक साथ लेके चल रहे हो। मतलब कि जो ओम नमः शिवाय ना बोले वो, जो कि टेक्निकल है मतलब, तो ये क्या मतलब हुआ उस चीज का यार, मतलब बट ऐसे लोग बेसिकली तुमको थकाने का काम करते हैं ना, उनको भैंस या एक्चुअली में ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता, तो वो सिर्फ तुमको थकाने का काम करते हैं कि तुम लाइक अपनी बात बोल बोल के थक जाओ। इनको ये नहीं समझ में आता मैं थकता ही नहीं हूँ। चलो फिर से मिलते हैं ना, अभी चाय वाय बनाएंगे थोड़ी सी। बेसिकली अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे को स्ट्रेटेजी समझ में आ गई ना, इन लोगों को मुझे पुश करना है, मतलब इनको पैसे दूंगा ही नहीं। इनको बेसिकली इतना क्लियरली जब ये आरोप लगा देंगे ना, इनको बोलूंगा ना मैं, एक एनलाइटेंड इंसान से पैसे लेते हो क्या तुम, और फिर इनको क्लियर करूंगा ना ताकि वो बाद में डाउट ना रहे। बाद में ये, क्योंकि ये लोग ही पलटेंगे, जैसे ये मुसलमान लोग पलट रहे ऊपर वाले, ये भी पलटेंगे। तो पहले से मैं उसको रिकॉर्ड बना के रख लूँ ना कि हाँ भाई ये क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम किस रिश्ते में ये चीज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग पलटे रहे मेरी लाइफ में। पहले तो सब मेरे को पागल करके पागल खाने में डाल रहे थे, ये घर वाले, ये सब सबके सब एक्चुअली मिलके। तो अब सब पलट गए, मतलब भाई अब सब पलट गए। सब फर्जी लोग है ना ये, इनका कुछ नहीं है, ये हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं। कोई कैरेक्टर नहीं है ना इनका। तो इनसे अब समझ में आ गया ना मेरे को स्ट्रेटेजी, इनको और पुश करना है ताकि इनका जो सत्य है जो ओपन में आ जाए। वही सही, कृष्ण समझाते थे, शांत हो जाता है ना फिर कृष्ण स्ट्रेटेजी बताते हैं कि अब ये फॉलो करना है अपने को, देने ही नहीं है पैसे। इनसे बोलूंगा ना मैं जाके, ब्रह्मज्ञानी लोगों से भी वही पैसे लेते हो क्या तू? जिस राम की पूजा करते हो उस राम से टैक्स वसूलते हो तू? ये भाई यार मेरे को पता है गेम बोरिंग ज्यादा लगता है, क्योंकि इंसान इतने स्टूपिड है ना यार, तुम लोग, तुम्हारा विलास तुमको नहीं दिख रहा है साले, चुटकी बजाते हुए पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता हूँ। टाइम लाइन्स को तो मैं सही में खेलता हूँ लिटरली, राइट। तो इस जैसे अभी मैंने टाइम लाइन बना दी ना नेक्स्ट वाली, क्या ऐसे ऐसे खेलेंगे इस टाइम लाइन को, अब तुम देखना उसके हिसाब से फिर मैं बाकी चीज़ें भी एडजस्ट कर देता हूँ कि ये वाली टाइम लाइन फिर इसमें कैसे दिखेगी, इसमें कैसे दिखेगी, इसमें कैसे दिखेगी कॉन्शियसनेस में, और फिर उसको यूनाइट कर देता हूँ पूरी कॉन्शियसनेस को। जब मिलते हैं फिर थोड़ा खेल के आता हूँ, तब चाय वाय पीऊँगा पहले, फिर इस टाइम लाइन में खेलने का आगे का मिल गया ना क्या रास्ता है। लाइक खाने वाले दुकान पे तो फिर भी मैं मान लो एक तरीके से कि उस बंदे को ही पैसे चाहिए, उसको भी एक्चुअली नहीं लेने चाहिए, तो पैसे चाहिए मतलब क्या, इकोनॉमी तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना।
साली बिल गेट्स से पैसे मांगते हो क्या तुम? लेके आगे जब आता है तुम्हारे फ्री में चाय पिलाते हो ना खुद, ताकि वो चाय वाय फिर। तो मैं बिल गेट्स से छोटा हूँ मतलब तुम्हारे लिए? मतलब मतलब ये यही चीज़ है ना, ये समझाने में दिक्कत यही है। पहले भी यही हुआ था, उन लोगों को मैंने समझाया, वो नहीं माने। फिर मैंने इतनी मेहनत की, पूरा सब कुछ किया, पूरा सिद्धि विद्या की, पूरा समझा। अब वो लोग पलट रहे हैं। अब ये जो लोग अभी नहीं मान रहे हैं, ये अभी नहीं मानेंगे, बट जब मैं पूरा उसको कर दूंगा फिर ये मानेंगे। तो फायदा क्या हुआ? तुमने जब तक मेरे पास ताकत नहीं थी तब तक तो माना ही नहीं। ताकत के बाद तो सभी मानते हैं, ताकत के बाद तो मानना ही पड़ेगा। उसमें तो चॉइस ही नहीं है, नहीं मानोगे तो सीधा खत्म वहीं पे। बट ये ऐसे ही करेंगे ना इंसान, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी करते हैं, ये आगे वाली लीला रचते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हुआ इसको स्पाइसी लगा के लाइक उसका ना कोई क्लेवर वाला तरीका निकालोगा ना कृष्णा से बात करके, कि कैसे किस वर्ड्स में एग्जैक्टली बोलना है ताकि उसमें कोई डाउट ही ना रहे बाद में। क्या क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्या कन्वर्सेशन होनी चाहिए, एग्जैक्टली डिज़ाइन करता हूँ ना मैं टाइम लाइन की। हाँ ये मुझे उस बंदे का कैरेक्टर पता है, तो मैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से देखूंगा कि ये मेरी इस बात को कैसे दिखेगा। सब प्रोजेक्शन कर सकता हूँ ना मैं ऐसे। नमस्कारम। और इस्लाम तो खत्म होगा, मेरा संसार मेरे तरीके से चलेगा। जिसको मैं बोला खत्म होगा वो खत्म होगा, जिसको मैं बोला नहीं खत्म होगा वो नहीं खत्म होगा। चल मेरे संसार के बनाए हुए कीड़े मकोड़ों तो मेरे को आके बता रहे हो कि मुझे कैसे चला रहा है। तुमको क्या लगता है तुमको, तुम लोगों को चला रहा हूँ सिर्फ? वो तो गया यार, अभी शिवा कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा, लाइक प्रेजेंट मोमेंट वाली में ना। ये शक्ति वाली में बहुत रह लिया मैं। थोड़ा रिचार्ज भी करते हैं।